Hello students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, today is first day of our new session. So beta, first of all, I hope you all are good at your home. And today we will start our new session and ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਬੇਟਾ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ 8th ਕਲਾਸ ਆ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਟਿਕਸ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਚੈਪਟਰ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬੇਟਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 2 3 ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋ ਔਨ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 0 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟੀਜਰਸ, 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਆ, ਫॉर एग्जाम्पल -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ P ਅਤੇ Q ਇੰਟੀਜਰਸ ਵਾ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ P ਅਤੇ Q ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ Q not equal to 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। P 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ Q ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। P ਅਤੇ Q ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ Q ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫॉर एग्जाम्पल 2/3 -2/3 2/-3। ठीक है। अच्छा हुण एक चीज़ सोचो
ਕੀ ਮੈਂ 2 ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕੀ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਯੈਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ 2 ਐਜ਼ 2/1 होगी P/Q की फॉर्म, क्योंकि यदा आंसर की आना 2 ही आना। P/Q की फॉर्म होगी जिथे P तो Q इंटीजर्स है, Q 0 नहीं आ, 1 आ। ठीक है, इस तरीके दे नाल जिन्ने भी अपने होल नंबरस है ना, ये सारे रैशनल नंबरस भी होंगे। क्लीयर आ? हुण इहदी डेफिनेशन तुसीं किवें लिखनी? हाँ जी, एक चीज़ होर वेखो, 0 रैशनल नंबर हुंदा वा? यस, क्योंकि 0/1 0 ही आ। बट 1/0 नहीं हो सकता। ठीक है, 1/2 मतलब डिनोमीनेटर 0 नहीं आनी चाहिए, न्यूमीनेटर हो सकता। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हुण इहदी डेफिनेशन किवें लिखनी तुसीं? इहदी डेफिनेशन लिखनी है a number in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called a रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/4, -2/7 एक्स्ट्रा। ठीक है स्टूडेंट, ये साडी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। क्लीयर? हुण असी रैशनल नंबर्स नाल रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। ठीक है, तुसी जदों अपनी कॉपी के उपर नोट्स बनाने ना, कॉपी बनानी है, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, नैचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ते रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ते एग्जाम्पल्स। आ चीज़ जस्ट मैं समझाई है बेटा तुहानूं। ठीक है, तुसी इन्ना मटीरियल ते आ डेफिनेशन रैशनल नंबर हैडिंग पा के एक कंप्लीट लिखना अपनी कॉपी के उपर। ठीक है, उस तो बाद साडा नैक्सट टॉपिक आ जाना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ये भी असी कॉपीज़ उपर नोट करनियां अपनियां, क्योंकि इन्हां दे विच्चों ही छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब MCQ, फिलअप्स इन्हां दे विच्चों ही बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। फस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी आ? हैडिंग पाउणा तुसीं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा उन्होंने ना सारे नंबर्स के उपर अप्लाई की हुई है, जिमें होल नंबर्स के उपर, इंटीजर्स के उपर, रैशनल नंबर्स के उपर। बट असी एक शॉर्ट फॉर्म दे विच करना वा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हुंदी की आ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये हुंदी आ, मतलब 4 अरथमैटिक ऑपरेटर होंगे साडे कोल, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ते डिवीजन। असी जिहड़ा भी ऑपरेशन उहदे उपर लावांगे कि उहदा आंसर उसे ही, जिवें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझो, फॉर एग्जाम्पल इत्थे असी फस्ट हैडिंग पा लेना क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो कि मैं अपना ऑपरेशन लगा रही हैं नैचुरल नंबर्स के उपर, नैचुरल नंबर्स के उपर एडिशन के उपर ला रही मैं 1 + 2, इन्हां दा आंसर कितना आना 3। 2 नैचुरल नंबर्स नूं प्लस किया कि उन्हां दा आंसर नैचुरल नंबर ही आ रहा वा? यस, इनू बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि जेडे नंबर्स के उपर ऑपरेशन लगाया वा कि वह आंसर भी उही नंबर्स आ रहे हैं, दैन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, मैं इंटीजर्स के उपर लगानी है जां नैचुरल नंबर्स के उपर ही वेखो, मैं सबट्रैक्शन करती, यदि सबट्रैक्शन की
कितना आंसर आ जाना -1। आ भी मेरा नैचुरल नंबर सी, आ भी मेरा नैचुरल नंबर सी, नैचुरल कह लो या होल कह लो, दोवें तरह ही है ना। कि -1 मेरा नैचुरल नंबर हैगा वा, नो -1 मेरा नहीं है। तुसी नैचुरल की जगह होल भी लिख लो तो भी कोई गल नहीं, होल च एक नंबर वध ही होंदा वा, है ना। 1 भी होल नंबर वा, 2 भी होल नंबर वा। कि इन्हों सॉल्व करके जोड़ा आंसर आ वो होल नंबर आया वा, नो। इट मीनस होल नंबरस दे विच सबट्रैक्शन दे विच क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, असीं इनू प्रॉपर्टी नू लिखना किवें आ, एक मिनट बेटा, इनू असीं लिखांगे इहदे विच बेटा टेबल बनाउणा तुसीं पेज नंबर 4 दे उपर ये वाला टेबल बनाउणा तुसीं क्लोजर प्रॉपर्टी दे विच, क्योंकि वक्खो वक्खरे नंबरस ते अप्लाई किया, जिवें मैं होल नंबरस के उपर या नैचुरल नंबरस कह लो उन्हां दे उपर अप्लाई किया वा, है ना। सो ये टेबल तुसीं बनाउणा वा ते प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आ गई। किवें करी दी आ, ਜਿਹੜੇ दो नंबर्स जिस किस्म के दो नंबर्स के उपर असीं ऑपरेशन लगा रहे हैं कि उन्हां दा आंसर भी उस ही तरह का आ रहा वा। ठीक है, ये टेबल जिहड़ा वा क्लोज्ड प्रॉपर्टी दे विच बनाउणा। नैक्सट हैगा कॉम्यूटेटिविटी, सैकेंड प्रॉपर्टी हैगी आ साडी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जिहड़ी आ ये भी बेटा डिफरेंट नंबर्स के उपर वा, होल नंबर्स से, इंटीजर्स से, रैशनल नंबर्स से। असी इहदा एक इत्थे पा लो रफ कॉमा, ठीक है, इत्थे पा लो इहदा फस्ट पार्ट कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। कोई दो नंबर ले लो, 2 + 3 ते 3 + 2, मैं एडिशन दे विच कर रही हूँ। ਇਹਦਾ आंसर भी 5 तो यदा भी 5 की है बराबर यस। कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन की कहती आ कि अगर ए नू बी च जोड़ांगे ਜਾਂ बी नू ए च जोड़ांगे तो दोवें बराबर होंगे। ठीक है, सैकेंड होंदी है कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। इनू भी सॉल्व करके वेख लो। ठीक है, मेन तुसीं आ दो चीज़ां जिहड़ियां लिख लैणियां वा ते प्लस इहदे विच एक टेबल ऐड करना वा पेज नंबर 6 तो। मतलब उन्होंने सारे नंबर्स के उपर अलग अलग ऑपरेशन लाए हुए हैं। ठीक है, यह वाला। नैक्सट होंदी एसोसीएटिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी हैगी आ एसोसीएटिविटी। ये याद रखना कि बेटा जी एसोसीएटिविटी होंगी ना हमेशा 3 नंबर्स के उपर लगती है, हमेशा 3 नंबर्स के उपर लगती है ए बी सी। मैं पहला कर दी हाँ एसोसीएटिव अंडर एडिशन। मैं कोई 3 नंबर ले ए बी तो सी। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होंदा सी ब्रैकेट नू पहला सॉल्व करते हैं। मैं नंबर ले ली 2 3 4। ठीक है, मैं पहला इन्हों उपर ब्रैकेट लाती, मतलब पहला इन्हों सॉल्व करना 2 + 3 5 + 4 इक्वल्स टू 9। इस तरह इन्हों उपर ब्रैकेट लगाती 3 + 4 7 2 + बराबर आए ना दोवें। इट मीनस एसोसीएटिविटी अंडर एडिशन फॉर रैशनल। मैं बेटा मेन एक्सप्लेनेशन ना आ जी तुहानूं रैशनल नंबर्स ही दे रही हैं, बाकी तुसीं टेबल तो समझ सकते हो। ठीक है, इट मीनस एसोसीएटिव अंडर एडिशन जी होल्ड करती है। सैकेंड होंदी है एसोसीएटिविटी अंडर
मल्टीप्लीकेशन। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ठीक है, नाल इहदे विच एक टेबल ऐड कर लियो। वो टेबल हैगा वा पेज नंबर 9 ते, आ वाला टेबल। ठीक है, अगर इन्हां विच कोई डाउट होएगा दैन मैनूं पुछ लेना। उस तो अगे बेटा एग्जाम्पल्स हैगियां, एग्जाम्पल्स भी करनियां वा। तुसीं 8th क्लास दे विच एग्जाम्पल्स नूं छड्डना नहीं आ, बट एग्जाम्पल्स बेटा मैं पहला तुहानूं एक्सप्लेन करूँगी कुछ सम, फिर तुसीं एग्जाम्पल्स खुद कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद ये असीं 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लियां वा। उस तो अगे नैक्सट तुसीं हैडिंग पा लो, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पा लो या नोट्स का हैडिंग पा लो, क्योंकि ये जिहड़ी चीज़ां मैं दस्सण लगी हैं तुहानूं शॉर्ट MCQ दे विच फिलअप्स दे विच आ सकदियां। ठीक है, फस्ट पार्ट, 0 इज़ कॉल्ड दी आइडेंटिटी फॉर दी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इहदा मतलब की है लाइन का, कोई भी रैशनल नंबर आ, मान लो 2/3 है, 0 इज़ कॉल्ड दी आइडेंटिटी फॉर दी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। उन्होंने क्या वा, किसी भी नंबर दे विच 0 ऐड करूँगी ना मैं, ठीक है, तो फिर वो नंबर सेम आएगा। इनू बोलते आ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो तुहानूं क्वेश्चन आ सकता वा कि एडिटिव आइडेंटिटी केड़ी आ। एडिटिव आइडेंटिटी केड़ी आ, 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0। ठीक है, किसी भी नंबर के विच की प्लस करांगे आंसर वही आ जाए 0। हाँ जी, किसी भी नंबर च की मल्टीप्लाई करांगे उहदा आंसर सेम आ जाए 1। सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी केड़ी होगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। ठीक है, सैकेंड पॉइंट आ जाना, 1 इज़ दी मल्टीप्लीकेटेड आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर किसी नंबर का नैगेटिव की हुंदा वा, अगर 1 पॉजिटिव है तो नैगेटिव की होएगा -1, है ना। सो नैक्सट थर्ड पॉइंट, फॉर अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हैगा A/B दी फॉर्म का, मान लो कि 2/3, ये विच मैं की प्लस करा कि मेरा आंसर 0 आ जाए। सौखे तरीके नाल ले लेने, मैं 1 दे विच की प्लस करा कि मेरा आंसर 0 आ जाए। असी 6th क्लास दे विच ये असी फिलअप्स पढ़ियां असी 6वें चैप्टर च इंटीजर्स दे विच -1 करूँगी। इट मीनस अगर मैं गिवन नंबर का नैगेटिव उहदे च प्लस करदा तो आंसर 0 आएगा। ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, सो A+B दे विच अगर मैं उहदा नैगेटिव प्लस करदा तो जे नंबर नैगेटिव वा उहदे विच मैं उहदा पॉजिटिव प्लस करदा तो उहदा आंसर हमेशा 0 हुंदा वा। सो 1 का एडिटिव इनवर्स की होएगा -1, तो -1 का एडिटिव इनवर्स की होएगा, एक ना न्यू वर्ड आ तुहाडे लई एडिटिव इनवर्स। अगर मेरे को 1 वा, मैं दे विच की प्लस करा कि आंसर 0 आ जाए -1, इट मीनस -1 इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1। तो जे मेरे को नंबर -1 वा, मैं की प्लस करा कि आंसर 0 आ जाए 1, मतलब रेसिप्रोक पुट्ठा हो जाती वो चीज़। ठीक है, 1 इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। अगर 1 वा उहदे च मैं -1 जोड़ूंगी तो 0 होगा, अगर -1 वा तो उहदे च मैं 1 जोड़ूंगी तो 0 होएगा। ठीक है, हुण एडिटिव इनवर्स वर्ड क्लीयर हो गया। थर्ड पॉइंट इत्थों नोट कर लेना, इत्थों लैके इत्थों तक। फोर्थ रेसिप्रोकल का तुहानूं पता की हुंदा वा, रेसिप्रोकल का पता ना, जे 2/3 आ तो इहदा रेसिप्रोकल की हो जाना 3/2। ठीक है, असी पढ़िया एडिटिव इनवर्स, ये भी बेटा MCQ च फिलअप्स आउंदा वा। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चनस आउंदा वा। एक हुंदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स।
ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 1/2 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ 1/2 ਆ, ਅਤੇ ਜੇ 1/2 ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 2। ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਡ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।